हमारे साथ मनोज सिंगल जी जुड़े हैं, जो हेड ऑफ कमर्शियल्स ऑरेंज फ्रांस की कंपनी है, उसमें कार्य करते हैं। मनोज जी, मैं प्रोफेसर सीमा गुप्ता, देशबंधु कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, और आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी फाउंडेशन में स्वागत करती हूँ। धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी फाउंडेशन के एक एस्टीम मेंबर हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि आप फाउंडेशन से कैसे जुड़े, आपको इसके बारे में कैसे पता चला? तो ज़्यादातर मैम क्या होता है कि मैंने इंजीनियरिंग किया है उसके बाद एमबीए किया है, और जैसे कि मैं एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो मेरा विदेशी कंपनियों के साथ और विदेशियों के साथ काफ़ी एक्सपोजर हुआ है पिछले 20 सालों में। तो मुझे समझ में एक जो फंडामेंटल रीज़न आया है कि इंडियंस आर ग्रेट, बट इंडिया एज ए कंट्री द इमेज हैज़ नॉट इम्प्रोवाइज येट, और उसका रिफ्लेक्शन हर साल हमें देखने को मिलता है जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग आती है। अभी भी लेटेस्ट आप फाइनेंशियल टाइम्स की जो रैंकिंग देखेंगे उसमें टॉप 200 टॉप 100 में बहुत ही लिमिटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो आई थिंक जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम जो होना चाहिए आज की डेट में, पहले भी होना चाहिए था बट आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वो है हमारी यूनिवर्सिटीज़ को अपग्रेड करने की। तो उसके लिए मुझे प्रोफेसर महेश जी का फ़ोन आया, उन्होंने मुझे बताया किस तरह का अवसर अवेलेबल है। तो I jumped on the opportunity and I became part of it. It is such a noble cause. Honestly speaking, after my convocation, I did not have any opportunity to shake hands with a VC of a university, and that to such a esteemed one like Red Delhi University. So it was a really gracious moment for me, and it was a positive vibes all through. And as I mentioned, he has got a vision to create this kind of an endowment fund, which I am seeing probably after IITs or NITs in our country. Delhi University is probably the first one which is creating this kind of an endowment fund. So Western countries में होता हुआ आया है, and that is the main reason why their universities are so successful, like Harvard, Princeton, Stanford we talk about. Why they're successful? Because apart from the government grant, their alumni support the universities. So here also, Professor Yogesh and his team has really given a direction for this endowment fund. So it was a really good experience after meeting him. So मैम, हमारी कंट्री में जो सबसे बड़ा लैक है अभी आज के डेट में, that is R&D. We are very good in terms of finance. Our banks are known. One of the best bankers we are known in the world. We have got very good in terms of manufacturing. Apple, Tesla, those companies are going to set up their shops. But even today, R&D is a major lack in our country. So in my view, the focus should be there in terms of developing the R&D. We have got different departments. So if we can create Apple, Tesla or Google of the world from Indian universities, that would be great. But that would only happen when their investment has to be there. So government cannot fund each and everything because they have got their limitations. So probably this fund can be utilized for that particular thing. कोई ऐसा संस्मरण आपको याद आता हो अपने बचपन से, अपने परिवार से या समाज से या देश से, which had an impact on you and made you the kind of person you are, and you are not even alumni of DU, but still you chose to make contribution. So please tell me something about that, if you could recall any such incident out of your life. So I come from a very humble background. I come from a rural background. So मैं बेसिकली भरतपुर डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान राज्य के अंदर, मैं वहाँ से आता हूँ, और मेरी पूरी शिक्षा जो है वो हिंदी मीडियम में हुई। तो अप टू 10th मैं हिंदी मीडियम में था, 11th और 12th मेरी एक सरकारी स्कूल में हुई है। उसके बाद जब मैं इंजीनियरिंग करने पहुँचा तो आई डिड माई इंजीनियरिंग फ्रॉम MNIT, दैट्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन जयपुर। तो वहाँ क्या होता है कि सारे राज्य से अलग अलग तरीके के बच्चे आते हैं, और वहाँ पहली बार मुझे एक्सपोजर मिला जहाँ पे पढ़ाई का जो तरीका था वो इंग्लिश में था। तो यहाँ तक कि मेरी पूरी पढ़ाई हिंदी में हुई थी, उसके बाद ऑल ऑफ ए सडन इंग्लिश का बैकग्राउंड हो गया। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई रियलाइज्ड कि हिंदी हमारी भले ही एक नेशनल लैंग्वेज हम बोलते हैं, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज, टीचिंग लैंग्वेज सारी इंग्लिश है। और वहाँ पे मुझे पहली बार ये रियलाइज हुआ कि अभी ये पहली सीढ़ी है। जनरली लोग सोचते हैं कि एक अच्छे इंस्टीट्यूट में पहुंचने के बाद आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, बट देन आई रियलाइज कि अभी दिल्ली दूर है। उसके बाद से पढ़ाई के अलावा जो एक स्पेशल थिंग थी जिस पर फोकस करना था वो थी इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट, एज ए स्किल।
क्योंकि इंग्लिश हमारी कंट्री के अंदर एक नॉलेज नहीं है, इट्स अ क्लास, इट्स अ टोकन टू एंट्री टू प्रेस्टिजियस क्लब्स, प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स। तो वहाँ मुझे रियलाइज हुआ कि एक ऐसी मैकेनिज्म होनी चाहिए जहाँ से हमें जो रूरल बैकग्राउंड से लोग आ रहे हैं उनको आप प्रमोट करें, आप उनको लेवल प्लेइंग फील्ड पे लेके आए, नॉट इन टर्म्स ऑफ रिजर्वेशन बट इन terms of some kind of assistance. So we did some kind of a social projects in engineering college as well. Apart from after even engineering, I did one project while I was working for a company that again I was posted in a rural area. वहाँ भी मैंने काम किया इस चीज़ के ऊपर. तो वही मुझे लगता है मैम कि जो एंडोमेंट फंड दिल्ली यूनिवर्सिटी क्रिएट कर रहा है, मेरे ख्याल से उसमें पहले मैंने मेंशन किया R&D, बट एक सेकंड एस्पेक्ट ये भी होना चाहिए. काफ़ी टैलेंटेड बच्चे ऐसे होते हैं जिनका एक्सपोजर जब वो दिल्ली में आते हैं, बड़े शहरों में आते हैं, तो उनके लिए सब चीज़ नई होती है. तो चाहे तो काउंसलिंग हो, चाहे लैंग्वेज असिस्टेंस हो, वो सारी चीज़ होना चाहिए. तो आखिरी सवाल आपसे मेरा यही रहेगा, क्योंकि आप कॉर्पोरेट सेक्टर से आते हैं और आपने अपनी एक जर्नी बताई कि एक सेल्फ मेड पर्सन की एक पर्सनालिटी निकल के आ रही है, तो आप हमारे स्टूडेंट्स के लिए जो आप ही की तरह छोटे शहर में एक से आते हैं और एक बड़ा सपना लेके दिल्ली यूनिवर्सिटी में आते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा आइडिया यही होगा जो मैं कह सकता हूँ यंगर जनरेशन के लिए कि हार्ड वर्क एंड देयर इज नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस. सेकेंड थिंग, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पे काम होना चाहिए. स्ट्रेंथ पे प्ले कीजिए और वीकनेस को कोशिश कीजिए कम से कम रहे. एंड आई थिंक इफ दीज टू थिंग्स आर देयर, I mean, you can reach up to the sky.